Hello my dear students, how are you? Are you good? Great. So today we are going to start next chapter of English grammar, that is chapter number 23, and the name of chapter is comparison of adverbs. In the previous chapter 22nd you have learned about types of adverbs, and in this chapter we are going to study about comparison of adverbs. Adverbs ka comparison. Just see, we use the positive degree. We use the positive degree of an adverb when no comparison is made. जब कोई भी कंपैरिजन नहीं होता तो हम कौन सी डिग्री यूज करते हैं एडवर्ब की? We use positive degree. For example, a hare runs fast. Here adverb is fast. So this is positive degree. For the positive degree, I am writing PT. Fine. Next, we use the comparative degree of an adverb to compare two actions. When two actions are happening at the same time, एक same time पर two actions हो रहे हैं और जब हम उसको compare कर रहे हैं, then we use comparative degree of an adverb to compare two actions. तो two actions को compare करने के लिए हम comparative degree use करते हैं. For example, a deer runs faster than a hare. तो यहां पर एडवर्ब क्या है? कंपैरेटिव डिग्री कौन सी है? फास्टर. ओके, दिस इज कंपैरेटिव डिग्री. फॉर दिस आई एम राइटिंग CD. ओके, कंपैरेटिव डिग्री. और जब भी हम कंपैरिजन कर रहे हैं वी विल यूज दैन. ओके, THAN दैन. कीप दिस इन योर माइंड, THAN दैन. Next, we use the superlative degree. Now we are going to talk about superlative degree. तो superlative degree हम कहाँ यूज करते हैं? Superlative degree of an adverb when we compare three or more actions. जब हम 3 या उससे ज्यादा के actions के बारे में बात करते हैं तो हम यूज करते हैं superlative degree. For this I am going to write SD. Okay, तो ये हमारी superlative degree है. The example of this is the cheetah runs the fastest of all animals. तो superlative degree यहाँ पर है. This is superlative degree. Okay, तो जो चीता है वो सब एनिमल से फास्ट चलता है. तो पॉजिटिव डिग्री का एक बार मैं एग्जांपल शेयर करूंगी फिर से आपसे. हेयर रन्स फास्ट. एक जो हेयर होता है वो फास्ट रनिंग करता है. फॉर द कंपैरेटिव डिग्री, अ डियर रन्स फास्टर देन अ हेयर. तो जो डियर होता है वो हेयर से भी फास्ट रन करता है. तो दो के बीच में कंपैरिजन हो रहा है. अब यहाँ सुपरलेटिव डिग्री में बात हो रही है कि जो चीता है, द चीता रन्स द फास्टेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स. तो सभी एनिमल्स की बात होगी तो वो 3 से ज्यादा ही होगी ना. सभी एनिमल्स या तो 3 का कंपैरिजन होता है, 3 से ज्यादा का होता है. तो ये तो 3 से ज्यादा हो गया, सभी एनिमल्स की बात हो गई. तो इसमें क्या है? जो चीता सबसे फास्ट रन करता है. तो फॉर दिस वी आर यूजिंग फास्टेस्ट. तो सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है? आप सुपरलेटिव डिग्री यूज कर रहे हो तो उससे पहले आपको द भी मिल जाएगा या आपको फिलअप आएगा तो भी आपको ये क्लियर हो जाएगा. ओके, तो हमारी जो डिग्री हुई वो क्या हुई? ये हुई हमारी पॉजिटिव डिग्री फास्ट, और हमारी कंपैरेटिव डिग्री हुई फास्टर, और हमारी सुपरलेटिव हुई फास्टेस्ट. फास्टेस्ट. तो हम क्या करेंगे जब भी हम इसको चेंज करेंगे? ओके, तो क्या ऐड करेंगे? कंपैरेटिव के लिए ER और सुपरलेटिव के लिए EST. बाकी भी हम यूज करेंगे. कंपैरेटिव के लिए मोर भी यूज करेंगे और सुपरलेटिव के लिए मोस्ट भी यूज करेंगे. कुछ एग्जांपल बताती हूँ आपको. जैसे कि एक तो फास्ट ही है, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट. लाइक नाउ इंटेलिजेंट. इंटेलिजेंट यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री. मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट. So this kind of table we will do with the help of bookwork also. Let's start now bookwork. Come to learn portion. Learn these sentences. I will come quickly. It's adverb of manner, as we have read in the previous chapter about the types of adverbs. This is adverb of manner. I will come there. This is adverb of place. I'll come soon. It's adverb of time. By changing the adverbs each time, we get a new sentence. Whenever we are changing the adverb, we are getting a new sentence. Each sentence conveys a different meaning. Now, using different adverbs, form new sentences with these sentences. We cook, she sings, he talked, they read. Next, you have learned that adjectives have 3 forms of comparison: positive, comparative, and superlatives. Similarly, adverbs too have 3 forms of comparison. इसी तरह क्या होता है कि
एडवर्ब्स के भी 3 टाइप्स होते हैं, जैसे कि कंपैरिजन एडजेक्टिव्स होते हैं जब उसको कंपैरिजन करते हैं ना, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। सिमिलरली एडवर्ब की भी 3 ही फॉर्म्स होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। वी यूज द पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडवर्ब व्हेन नो कंपैरिजन इज मेड। जब कोई भी कंपैरिजन नहीं होता है, then we use positive degree. For example, Navita arrived soon. Soon is here adverb of, soon here is adverb, okay, positive degree है. Next, a hare runs fast. Here fast is adverb, that is positive degree. Next, we use the comparative degree of an adverb to compare two actions. For example, I will arrive sooner than Navita. A deer runs faster than a hare. Here you can see that we are using comparative degree of adverb. This is sooner and next faster. And just notice that in these sentences we have used than and then, THAN. Keep this in your mind whenever we are just comparing, then we will use than. We use a superlative degree of an adverb when we compare 3 or more actions. When we are comparing 3 or more actions, यानी कि 3 actions या 3 से ज़्यादा actions को जब हम compare करते हैं, then we use the superlative degree. For example, I will arrive the soonest. The cheetah runs the fastest of all animals. Now come to this green portion. We use than with the comparative degree, as I have told you earlier also कि हम than use करते हैं comparative degree के लिए. We use the with the superlative degree, और superlative degree के साथ हम the use करते हैं. Now come to book exercise. It's exercise 8. Take the correct option in each sentence. First, an aeroplane moves fast, faster than, या फिर the fastest and express train. Just see कि यहाँ पर कंपैरिजन किया हुआ है एरोप्लेन और एक्सप्रेस ट्रेन का, कि एरोप्लेन है वो एक्सप्रेस ट्रेन से फास्ट चलता है. सो क्या यूज़ करेंगे हम? सेकेंड डिग्री हमें यूज़ करनी है ना, कंपैरेटिव डिग्री, और हमें ये भी ध्यान रखना है कि उसमें दैन हो. सो फास्टर दैन इज द करेक्ट ऑप्शन. सेकेंड, विच स्टार शाइन्स डैश इन द नाइट स्काई. तो कौन सा स्टार जो नाइट स्काई में शाइन करता है? तो हाँ, यहाँ पे हमें सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करनी है, द ब्राइटेस्ट. क्योंकि ये सारे स्टार्स की बात हो रही है ना, काफ़ी सारे स्टार्स की, तो इट मीन्स कि जब हमें ये पता है कि 3 से ज़्यादा का कंपैरिजन हो रहा है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? सुपरलेटिव. नेक्स्ट, राहुल वर्क्स डैश. तो यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं है, ना 2 में ना 3 में, तो सो वी विल यूज़ पॉजिटिव डिग्री हार्ड. फोर्थ, जैकी रैन फास्ट, फास्टर देन द फास्टेस्ट इन द रेस. तो यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं है, वी विल राइट फास्ट. नेक्स्ट, जय रैन डैश जैकी. तो यहाँ पर 2 पर्सन्स के नेम है, इट मीन्स कि कंपैरिजन हो रहा है जय और जैकी के बीच में. तो हम क्या यूज़ करेंगे? स्लो, स्लोअर देन, या फिर द स्लोएस्ट. तो कंपैरिजन 2 में है, तो फॉर द कंपैरिजन फॉर 2 वी विल यूज स्लोअर देन. नेक्स्ट, प्रदीप रैन स्लो, स्लोअर देन और द स्लोएस्ट. तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? द स्लोएस्ट. Okay, rest of the exercise do it yourself. Now come to learn portion. Adverbs of one syllable form the comparative degree by er. We add es to the form the superlative degree. Look at this table. यहाँ पे हमें टेबल में पॉजिटिव डिग्री दी हुई है, कंपैरेटिव एंड देन सुपरलेटिव. हेयर फर्स्ट वन इज हाई. कंपैरेटिव के लिए हम er ऐड करेंगे, इट विल बी हायर. फॉर द सुपरलेटिव वी विल ऐड est. पॉजिटिव डिग्री में हम est ऐड करेंगे, हाईएस्ट. नेक्स्ट, ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट. हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट. फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट. लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट. तो द बेसिक रूल इज़ कि जब आप उसको कंपैरेटिव में चेंज कर रहे हो तो पॉजिटिव डिग्री में आपको er ऐड करना है, और जब आप सुपरलेटिव में चेंज कर रहे हो तो पॉजिटिव डिग्री में आपको est ऐड करना है. Adverbs ending in ly form their comparative degree by adding more to the positive degree and the superlative degree by adding most to the positive degree. अब जो वर्ब एडवर्ब्स ly में एंड हो रही हैं, हम उसके साथ क्या करेंगे? कंपैरेटिव में चेंज करने के लिए मोर ऐड करेंगे उसके साथ, और सुपरलेटिव में चेंज करने के लिए वी विल ऐड मोस्ट. फॉर एग्जाम्पल, क्लेवरली, मोर क्लेवरली, मोस्ट क्लेवरली. Noisily, more noisily, most noisily. Beautifully, more beautifully, most beautifully. Next, roughly, more roughly, most roughly. Sweetly, more sweetly, most sweetly. Early ends in ly, but its comparative and superlative forms are earlier and earliest.
अर्ली के लिए हम मोर अर्ली, मोस्ट अर्ली यूज़ नहीं करेंगे. वी विल राइट अर्लियर एंड अर्लीस्ट. सम एडवर्ब्स डू नॉट फॉलो एनी ऑफ दीज रूल्स. कुछ ऐसी एडवर्ब्स होती है कोई भी रूल्स फॉलो नहीं करती हैं. हियर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ देम in this column, in this table. Some examples are given for that: positive degree, comparative and superlative degree. First, well, its comparative will be better and superlative will be best. Next, badly or ill. For this, comparative will be worst and superlative worst. Much, more, most, far, further, furthest. नेक्स्ट ये जो फार है ये पोजीशन है. नेक्स्ट फार, फार्दर, फारदेस्ट ये डिस्टेंस के लिए यूज़ होता है. डिस्टेंस के लिए फारदेस्ट रहेगा सुपरलेटिव में, और जब पोजीशन की बात होगी तो फर्देस्ट रहेगा. नेक्स्ट लिटल, लेस, लीस्ट. नेक्स्ट एक्सरसाइज बी, कंप्लीट दिस टेबल. पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज आर गिवन. Sometimes positive is written, sometimes comparative is written, sometimes superlative is written. Whatsoever the blank is given here, we have to fill it. First, handsomely, more handsomely, most handsomely. Second, positive is blank, comparative is blank, and superlative is given most faithfully. Its positive will be faithfully, comparative more faithfully, and then superlative is already given most faithfully. Third is badly, its comparative worse and superlative worst. Fourth, soon, its comparative sooner and superlative will be soonest. Fifth, positive and comparative, it's blank, and superlative is given closest. Its positive will be close and comparative will be closer. Rest of the exercise, do it yourself. Now come to C exercise. Fill in the blanks with the correct degree of comparison of the adverbs given in the brackets. ब्रैकेट में आपको एडवर्ब दी हुई है, आपको उसकी जो है करेक्ट डिग्री फिल करनी है. आपको चेक करना होगा सेंटेंस में. यू हैव टू रीड इट केयरफुली. फर्स्ट, प्रशांत परफॉर्म्ड द डैश अमंग ऑल द कंटेस्टेंट्स. वेल इज गिवन हियर. तो द दिया हुआ है ब्लैंक से पहले. जब भी ब्लैंक से पहले द होगा तो हम सुपरलेटिव डिग्री फिल करेंगे. तो आंसर विल बी बेस्ट. Second is he saved dash money than his brother. Option little is given. तो than दिया है, it means कि comparison है, तो we will write less. Third is among all the students, Farhan lives the dash to the school. Near is given in the bracket. So अब चेक करिए, ब्लैंक से पहले द है तो सुपरलेटिव डिग्री फिल करेंगे हम. इट विल बी नियरेस्ट. फोर्थ, द स्वैन स्वैम डैश इन द पॉन्ड. ऑप्शन ग्रेसफुली इज गिवन. तो यहाँ पर कोई दैन नहीं है, कोई द नहीं दिया हुआ, सो वी विल राइट ओनली ग्रेसफुली. फिफ्थ इज रविश आंसर डैश देन करीम इंटेलिजेंटली इज गिवन ऑप्शन. सो हियर इज द कंपैरिजन बिटवीन टू रविश एंड करीम. तो एंड दैन इज ऑल्सो गिवन. सो व्हाट विल वी राइट नाउ? यस, मोर इंटेलिजेंटली. सिक्स्थ इज द ट्रैफिक रशेस डैश बाय माई विंडो and the option is noisily. So there is no comparison, not between two, not more than three. So here we will write noisily. Now come to recap portion. Comparative degree of an adverb is used when we compare two actions. Comparative degree तब use की जाती है जब हम two actions को compare करते हैं. And superlative degree of an adverb is used when we compare three or more actions. जब हम three या उससे ज़्यादा के actions use करते हैं तब हम use करते हैं superlative degree. And just keep in your mind, आपको blank में जब भी आपको fill करना होगा तो comparative degree का अगर option आपको fill करना होगा तो आपको उसमें than मिल जाएगा. तो टू में कंपैरिजन होगा, और जब आपको सुपरलेटिव डिग्री फिल करनी होगी तो आपको ब्लैंक से पहले द मिल जाएगा, और जो कंपैरिजन होगा वो 3 या 3 से ज़्यादा में होगा. आई होप द कंसेप्ट इज़ क्लियर टू यू एंड एवरीवन. जस्ट after watching this video, you all will do the book exercise yourself, then you will match the answers with PDF. Now we are going to learn about formal letters. Formal letters are written to official bodies, school, colleges, etc. to make requests or complaints. These are the main parts of a formal letter. Here I am going to tell you the main parts of a formal letter. So how to start it, how to write it. I am telling you the points. First, in the starting we write sender's address. Then we write date. You can see in the format also. And after that, at number 3, we write receiver's address, the person who receives the letter. And at 4th, we write greeting, मतलब जिस person को हम write कर रहे हैं उसे greet करेंगे. Next, at the 5th number, हम लिखते हैं subject, letter का subject क्या होगा. And then at number 6,
हम बॉडी ऑफ द लेटर राइट करेंगे, जो मैटर होगा लेटर का वो राइट करेंगे. 7th कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज एंड एट 8 नंबर सिग्नेचर्स एंड सेंडर्स नेम, जो भी लेटर सेंड कर रहा है उसका नेम. And here is a format, you can look at this. It's a format of formal letter. The labeled parts will help you to understand it better. तो जस्ट सी यहाँ पर राइट किया हुआ है सार्थक मोहन A41 कृष्णा अपरा सेक्टर 61 नोएडा. तो ये हमने जो अभी डिस्कस किया था नंबर 1 पर हम राइट करेंगे सेंडर्स एड्रेस एंड दिस इज सेंडर्स एड्रेस. ओके, तो आप अपना राइट करेंगे जब आप अपने आप लेटर राइट कर रहे हैं ना, तो आप अपना ही एड्रेस राइट कर सकते हैं. समटाइम्स आपको एड्रेस गिवन भी होता है. ओके, तो अभी आप यहाँ पर अपना राइट कर सकते हैं. नेक्स्ट आप डेट राइट करेंगे, जो भी डेट है. ओके, तो जैसे अभी जैन का मंथ चल रहा है ना, तो आप राइट करेंगे. अभी हम आज कर रहे हैं ना, मंडे को कर रहे हैं, 18 है आज, 18th जैन 2021. तो ये हमारी डेट है. नेक्स्ट आप किसे राइट कर रहे हैं लेटर, तो आप स्कूल में राइट कर रहे हैं. जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि हम ऑफिशियल बॉडीज़ को स्कूल कॉलेजेस में राइट करते हैं, तो वो हमारे फॉर्मल लेटर्स होते हैं, तो हम स्कूल में राइट कर रहे हैं. द प्रिंसिपल, आप अपने स्कूल का नेम राइट करेंगे, BR ग्लोबल स्कूल सिरसा. ये हो गया एड्रेस ऑफ द रिसीवर कि जिसको हम लेटर सेंड कर रहे हैं, और जो रिसीव कर रहे हैं, स्कूल को भेज रहे हैं ना, तो स्कूल रिसीव कर रहे हैं ना, तो दैट इज रिसीवर. नेक्स्ट सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर लीव लेनी है, तो उसके लिए एप्लीकेशन, दिस इज सब्जेक्ट ऑफ द लेटर. एंड नेक्स्ट ग्रीटिंग्स में डियर सर, सैल्यूटेशन या जिसको हम ग्रीटिंग्स बोलते हैं. नेक्स्ट अब जो बॉडी है लेटर की, दिस इज टू रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी 2 days लीव ऑफ एब्सेंस फॉर द 17th एंड 8 सॉरी यहाँ पर अप्रैल लिखा हुआ है, तो आप नेक्स्ट डेज की, आप जैसे हम 18 को हम डिस्कस कर रहे हैं ना अभी ये, तो हम आज डिस्कस कर रहे हैं 18 को, तो अभी हम नेक्स्ट 2-3 डेज जब भी आपको लेनी है लीव, तो आप वो 2 dates मेंशन कर सकते हैं. ओके, एज आई हैव टू अटेंड माय ग्रैंडफादर्स बर्थ सेंटेनरी सेलिब्रेशंस. तो यहाँ पर आपका रीज़न वेरी भी कर सकता है, सबका रीज़न डिफरेंट होता है. मान लो किसी को मैरिज अटेंड करनी है, या समवन इज़ नॉट फीलिंग वेल, या कभी अर्जेंट वर्क, तो उस तरह से भी आप अपने रीजंस यहाँ राइट कर सकते हैं. ओके, आई विल सेंड यू वन मोर एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल तो आपका यहीं है ही बुक में, एंड वन आपको एक और सोल्व लेटर सेंड करूंगी मैं, और एक ऐसा लेटर होगा जो कि आपको खुद को ही राइट करना है. ओके, आई विल गिव यू ओनली हेडिंग, तो वो आप खुद राइट करेंगे. एंड नेक्स्ट हम चेक करते हैं, वी विल राइट थैंकिंग यू एंड देन योर्स ओबीडेंटली इज कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज. एंड नेक्स्ट नेम जो है, अभी नेम क्या हमने सार्थक मोहन राइट किया. क्यों राइट किया, क्योंकि इस लेटर में ऑलरेडी जो सेंडर है वो कौन है, सार्थक मोहन है, तो हम सार्थक मोहन ही राइट करेंगे. ओके, तो ये सिग्नेचर या फिर सेंडर्स नेम हम इसको बोलेंगे. एंड लास्ट में आप क्या राइट करेंगे, अपनी क्लास राइट करेंगे, क्लास 4th A 4th B 4th C व्हाटसोएवर इट इज. ओके, तो ये हमारा क्या है, फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट है, जो आपको बहुत ध्यान से राइट करना है. फाइन. Here are some more instructions for you. Study this table. Here the some columns are given. In the first column person is written, second column salutation, and in the third column complimentary clause. तो आपको formal letter में क्या क्या आपकी ये चीज़ें रहेंगी. person हो तो principal and teachers, manager of a bank, authorities, strangers, salutation में dear sir और ma'am रहेगा, या sir ma'am, या फिर सर मैम. इट मीन्स क्या है, जब आप प्रिंसिपल और टीचर्स को राइट कर रहे हैं, यू विल राइट डियर सर और डियर मैम सैल्यूटेशन. और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आपका रहेगा योर्स ओबीडेंटली, जब आप प्रिंसिपल और टीचर को राइट कर रहे हैं. जब आप मैनेजर ऑफ अ बैंक को राइट कर रहे हैं या अथॉरिटीज़ को राइट कर रहे हैं, तो आपका सैल्यूटेशन सर या मैम रहेगा. और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आपका रहेगा यूअर्स फेथफुली. एंड जब आप स्ट्रेंजर्स को राइट कर रहे हैं, पर्सन स्ट्रेंजर्स है, तो सैल्यूटेशन आपका सर मैम रहेगा, और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज विल बी योर्स ट्रूली. And next, remember these points while writing a formal letter. Do not use a comma after the salutation or complimentary clause. आपको comma use नहीं करना है, ना तो salutation के बाद ना complimentary clause के बाद. Next, write the complimentary clause on the left hand side of the letter just below the body. आपको बिल्कुल जो बॉडी आपने लेटर की राइट की है उसके बिल्कुल बिलो आपको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज राइट करना है, लेफ्ट हैंड साइड. द वाई इन योर्स शुड बी कैपिटल. ये कभी बच्चे मिस्टेक कर देते हैं काफ़ी, जो वाई लिखते हैं योर्स का वो स्मॉल राइट कर देते हैं, बट इट शुड बी कैपिटल. देयर शुड बी नो अपोस्ट्रोफी बिफोर द एस. आप योर्स राइट करेंगे तो एस से पहले कोई अपोस्ट्रोफी यूज़ नहीं होगा, सिंपल स्पेलिंग होगी. दैट इज रिटन हियर YOURS.
ओके तो जो वाई रहेगा दैट विल बी कैपिटल. नेक्स्ट द वर्ड्स फॉलोइंग योर्स लाइक ट्रूली फेथफुली और ओबीडेंटली शुड बी रिटन विद द स्मॉल लेटर्स. आप योर्स राइट करेंगे तो उसका तो वाई कैपिटल होगा. जब आप ट्रूली राइट करेंगे, फेथफुली या ओबीडेंटली राइट करेंगे तो उनका जो फर्स्ट लेटर रहेगा, ट्रूली का ट्री, फेथफुली का एफ और ओबीडेंटली का ओ, ये स्मॉल रहेगा. राइट योर फुल नेम क्लियरली एट द एंड बिलो द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. जब आप कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कर रहे हैं तो उसके बिलो आप क्या करेंगे, अपना जो नेम होगा फुल लिखेंगे, कंप्लीट नेम लिखेंगे. ओके, थैंक यू. आई होप you have understood this now, and just do the practice of the letter which I have sent to you in the PDF form. Okay.